تمہارے ہاتھ میں جو بھی سورسز ہیں، وہ نیٹ کے ذریعے ہے، کمپیوٹر کے ذریعے ہے، اس سے تم اپنے گوگل سرچ پہ جا کے بہت ساری فری سائٹس یا فری میں جو ہے اردو کو آپ کے جو اپنے ڈیفیکلٹ مضامین ہے اس کو کیسے اس میں سے حاصل کیا جائے، تو وہ سب چیزوں کے بارے میں بچوں کو انسٹاگرام نہیں بنانا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھوں گا کہ یہ سب چیزیں خالی پوائنٹ اور یہ سب ڈسکشن کرنے سے زیادہ ہم لوگوں کو پہلے بہت زیادہ اس میں پریپریشن کرنا پڑے گا. اساتذہ اکرام کو بہت پریپیئر ہونا پڑے گا. اس کے بعد انشاءاللہ وسیلہ اسباب بہت آسان ہے ڈیجیٹل ہونے کے لیے. شروع کیا، پھر ہم کلاس روم تک پہنچے. جب ہم کلاس روم تک آتے ہیں تو ہمارے پاس بلیک بورڈ ہے. بلیک بورڈ سے ہم نے سفر کیا گرین بورڈ تک اور اب باتیں ہو رہی ہے وائٹ بورڈ تک. جہاں تک ڈیجیٹل کی بات ہے، آپ جو ڈیوائسز ہیں الیکٹرانکس، تو اس میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، اب یہ ساری چیزیں مطلوب ہو چکی ہیں، بلکہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں. اب زمانہ ہے ٹیبلیٹس کا، لیپ ٹاپ کا. ٹیبلیٹس اور لیپ ٹاپ کے ذریعے تعلیم کا جو تصور ہے، یہ ایک ایسا تصور ہے جو کسی نہ کسی سطح پر استاد کا استاد اور اسٹوڈنٹس کے درمیان جو ایک پرسنل کانٹیکٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس رابطے پر زد پڑ رہی ہے. تو میں دریافت کرنا چاہوں گا آپ خواتین سے خاص طور سے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے ڈیوائسز یا ڈیجیٹل کلاسز کا جو تصور ہے، اس میں ٹیچر کی کیا حیثیت یا اساتذہ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ میں جاننا چاہوں گا عبد الخان صاحب. ٹیچر کا مقام نہ پہلے کبھی ختم تھا، نہ آج ختم ہے، نہ آگے ختم ہے. اب ٹیچر کون ہے؟ ٹیچر کے پاس پہلے کون ہے؟ ٹیچر کے پاس فیوچر ہے ہمارے پاس. جن ٹیچر کی نظر فیوچر پہ رہے گی وہ ٹیچر کی اہمیت ہمیں جائے گی. ہم جس جنریشن کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ آج کی جنریشن ہے، فیوچر جنریشن ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اسکولس اپڈیٹ کرتی ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ٹیچرس کی جو ہے کبھی ویلو ختم ہوئی ہے. رہی بات ڈیجیٹل لرننگ، تو آج ڈیجیٹل لرننگ اتنی آسان، اتنی سستی ہو گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے. ہر بچے کے پاس ہر گھر میں اینڈرائڈ موبائلس ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے لیے اتنے اپلیکیشنس ہیں. لینگویج کا بھی بات نہیں ہے. آج اردو میں ہے، ہندی میں ہے. یوٹیوب پہ جائیے، جس طرح آپ اس کو بتا رہے ہیں کھانے کا بھی کئی، اس کا سفر کس طرح سے ہوا تھا، سلمان خان اسی کا بنایا ہوا ہے. کس طرح شروع کیا اس نے، کہاں ہے آج وہ، راجستھان گورنمنٹ نے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کیا ہے. تو آپ اگر جو ہے جو آپ کے سلیبس کا ایسا کون سا ٹاپک ہے، ایسا کون سا کانٹینٹ ہے جو آج ڈیجیٹل فارم میں اویلیبل نہیں ہے. اگر ٹیچر اویئر ہے کلاس کے اندر، اگر اس کے پاس انٹریکٹیو بورڈ نہیں ہے، اسمارٹ بورڈ نہیں ہے، وائٹ بورڈ وہی 50 سال 100 سال پرانا وہی چل رہا ہے، تب بھی آپ کے پاس ہر ٹیچر کے پاس موبائل ہے، ہر بچے کے پاس ہے. اس کا بہت ہو گیا، اس کے بعد بہت پروگرام ہے. میں درخواست کروں گا عبداللہ خان صاحب سے کہ آپ اپنے ویوز ہمارے ساتھ رکھیں. جیسے کہ ابھی پینل ڈسکشن مسائل پر، اور مسائل میں سب سے پہلا جو آیا مدعا وہ اساتذہ اکرام ہے. تینوں پینل ڈسکشن میں کے ایکسپرٹس نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی بہت ہی صحیح انداز میں رکھی اور الحمدللہ واضح بھی کری. اس کا عنوان یہ ہے، جو سینٹرل پوائنٹس یہ ہیں. سینٹرل پوائنٹ یہ تھا کہ ٹیچر ایک محور ہے، ٹیچر ایک مرکز ہے. اور جیسے تینوں ایکسپرٹس نے باتیں سامنے رکھی، میرا بھی اسی بات پر کہنا ہے کہ اساتذہ اکرام ہے. اور اگر ٹیچرس ہی سب سے زیادہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی تو سمجھ لیں، منصب ہوا کیا کہ ابھی حال میں اور اکثر ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ اب جو ہے یہ سب اساتذہ اکرام کو بھی لوگوں نے پیشہ سمجھ کے باقاعدہ ڈیلنگس کرتے ہیں، اپائنٹمنٹس کے صورت میں ہو یا پھر جو ہے مختلف شکلوں میں اس کے پہلے بولا چاہیے سسٹمس آ چکے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ٹیچر جو منصب ہے، اس کا جو پوزیشن ہے وہ منصب ہے. آپ منصب کو نہ سمجھتے ہیں، وہ صرف جو ہے وہ ایک پیشہ، ایک پروفیشنلزم کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے بہت کمی ہے، افسوس ہے کہ میرے اساتذہ اکرام بارے میں ایسے سنا جاتا ہے کہ بس
क्या दे तो महत्व है। तो टीचर्स की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद जो टीचर्स से जो हेड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स, एक खास बात जो कि मौजूदा सरकार के ताल्लुक से हम ये देख रहे हैं कि इनका जो डिजिटल इंडिया का ख्वाब है वो ख्वाब बनने शुरू होता है स्कूल से। सबसे पहले सरकार ने कंपल्सरी एजुकेशन कंपल्सरी स्कूलों में लागू कर दी। उसको कंपल्सरी इसलिए कर दिया गया कि बच्चों को पेशा वाराना मालूमात से जोड़ा जाए, स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाए। और मौजूदा सरकार जिस तरह से तमाम सरकारी अदारों को ऑनलाइन करती जा रही है, जैसे भी हम देख रहे हैं कि सरल डाटा वगैरह यूडाइस भरा जा रहा है जिसमें तमाम डिटेल्स है। और अभी बर वक्त पिछले महीनों से इस तरह से शुरू हुआ है कि व्हाट्सएप के जरिए आपकी जो मौजूदा क्लास में तादाद है उस तादाद को भेजना है। लेकिन अभी भी ये छोटी सी शुरुआत है, लेकिन आगे ये होने वाला है जो मैं महसूस कर रही हूँ वो ये कि ऑनलाइन सिस्टम इस तरह से कर दिया जाएगा कि महकमा तालीम वाले हमारे स्कूल के क्लासरूम तक पहुँच जाएंगे और क्लासरूम के लेसन ऑब्जर्वेशन को अपने ऑफिस में बैठ कर करेंगे। तो अब उस सिचुएशन के लिए स्कूलों को, स्कूल की इंतजामिया को व्यवस्था होना है, असातिज़ा इकराम को, प्रिंसिपल्स को तैयार होना है सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि ये बहुत अहम बात है। इसमें वही लोग टिक पाएंगे जो वाकई काबिल है और वाकई मेहनती है। अदरवाइज ऐसी पोजीशन हमने कुछ व्हाट्सएप पे देखी वीडियोस देखा था, बिहार में जो स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया था, कुछ टीचर्स की लेसन ऑब्जर्वेशन हमने देखा व्हाट्सएप पे। देखने के बाद हैरत जो हुई वो अलग, अफसोस जो हुआ कि हमारी बिरादरी में इस तरह से मामला चल रहा है। तो इसके लिए हमें बहुत हद तक तैयार होना है और मसाइल जो है हर वक्त रहे, हर हालात में रहे। टीचर अपने बच्चे को उन्हीं मसलों में सर्वाइव करने के लिए तैयार करना है। शुक्रिया। सिविल सर्विसेज की तैयारियां कैसे की जाएँ, और मैं यहाँ तालिबात बैठी हुई जी डिग्री कॉलेज की, मैं उन तालिबात से दरख्वास्त करूँगा कि भाई मेरा वो प्रोग्राम आप सुने, अटेंड करें और इस्तेफादा आप करें उससे। इसके लिए जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं वो ऐसे स्पीकर हैं जिन्होंने कईयों को ऑफिसर बनाया है, तो वो बहुत ही मुमकिन है, बहुत ही सूझबूझ है आपके लिए। हाज़रीन, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। बहुत अहम मौजूद था उर्दू स्कूलें डिजिटल दौर में, हम रिवायती तर्ज अमल से निकल कर डिजिटल दौर में दाखिल हुए। बहुत सारे सवाल हैं, मैं समझ रहा हूँ आप ही समझ रहे हैं। मयार का मसला है, क्लास को कैसे डिजिटल किया जाए, फंडिंग का मामला है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन भी हमारे सामने आए। मिसाल के तौर पर नजरीन खान साहबा ने कुछ NGOs के नाम दिए, कुछ कंपनियों के नाम दिए। सर ने बहुत सारी वेबसाइट्स बताई हैं जहाँ से आप फंडिंग हासिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ इंतजामिया के अरकान भी बैठे हुए हैं और असातिज़ा बैठे हुए हैं, आप ज़ाती तौर पर मुलाकात करें और उनसे इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैं तमाम मौजूद का जनाब अब्दुल्ला खान साहब का, अब्दुल रहमान साहब और नसीम शेख साहब, आलिया खान साहब कि आपने हमारी दावत पर लबैक कहा, यहाँ तशरीफ लाए और इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। और मैं सुखन गुस्ताना बात के लिए बस में शुक्रिया के लिए दरख्वास्त करूँगा ये वीमेंस कॉलेज डॉक्टर इब्तिदा करीम साहब तशरीफ रखते हैं। मेरी मुझसे ये रही कि मैंने जामिया मिलिया में लिटरेचर कोर्स भी किया, तो सर के मैंने 2 लेक्चर अटेंड किए। इस एतबार से आप वो रस्मी तौर पर मेरे उस्ताद की हैं, मैं आवाज़ देता हूँ कि इब्तिदा करीम साहब को तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात के दौरान। वैसे ही कोई टीचर कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसका इल्म, उसके ख्यालात सब बैठ जाते हैं। तो मैं ये रिस्क लेने के मूड में नहीं हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ ये जो डिस्कशन अभी चल रहा था इस हवाले से जो बातचीत आई है, और जैसा कि अभी रमजा साहब ने बताया ये मौजूद ऐसा नहीं है कि आधे घंटे में और 1 घंटे में हम लोग इसको समाप्त कर सकते हैं। बड़ा मौजूद है और चूँकि आज का जो दौर है, आज का जो ज़माना है, इससे इसका बहुत रिलेवेंस भी है। मैं असल में परेशान इसलिए था बैठा हुआ वहाँ पे कि जो बैनर पे छपा हुआ है
करते रहे उसका कि वो हम लोग डिजिटलाइजेशन पे बात करते रहे। डिजिटलाइजेशन भी क्या है, एक भूत की तरह सवाल हो गया है हमारे सर में। इसको इतना मत अपने सर में सवाल कर लीजिए कि इसके जो दूसरे मसाइल हैं वो हम पर हावी हो जाए। बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सब कुछ डिजिटलाइजेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही डिजिटलाइजेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा अपना ये यकीन और मानना है कि ई बुक को सब कुछ होने के बावजूद प्रिंटेड बुक की जो अहमियत है तो हमेशा देखिए उसका लुत्फ अलग है। ई बुक जो होता है वो है आपको इंफॉर्मेशन देता है, आपको एक्नॉलेज कर देता है, लेकिन आपको एजुकेट नहीं कर पाता है। किताब पढ़ने में जो लुत्फ हासिल होता है वो कंप्यूटर से मुताला करने में वो लुत्फ नहीं हासिल हो सकता है किसी भी चीज। इसका फायदा हमें उठाना है, इसका फायदा हमें हासिल करना है, नए जमाने के साथ शाना बशाना चलना है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसी को ईमाने कुल समझ लेना ये जरा सी दुश्मनी की बात है। क्योंकि जो लोग यूज कर रहे हैं नेट को भी और सोशल मीडिया को भी, ई बुक को भी, ये सब लोग जो कर रहे हैं उनको उनकी दुश्वारियों का भी अंदाजा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। जो सबसे अहम बात डिजिटलाइजेशन के हवाले से है वो यूँ है कि वो जो आपका अदबी सरमाया है, जो लिटरेरी सरमाया है, जो भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तमाम उलूम में जितनी किताबें मौजूद हैं, उसका एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उसको मुट्ठी में कर लेते हैं डिजिटलाइजेशन होने की वजह से। ये पता है किसी एक हार्ड डिस्क में महफूज रखा है, तो मेरा ख्याल है कि जो लोग इस दुनिया के माहिरीन हैं वो भी जानते हैं कि वो भी किसी वक्त करप्ट हो सकता है, और जब वो करप्ट हो गया तो सारी चीजें आपके खत्म हो जाएंगी। इसलिए एहतियात का तकाजा ये होता है कि हम उसको जो है उसका बैकअप तैयार करके रखते हैं कि एक अगर जो है करप्ट हो जाता है तो दूसरा हो तो तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये करके रखना पड़ता है। यही वजह है कि जब किताबें छपती थी, एक जमाना था जब मखतूता बादशाह ने लिखा, किसी राइटर ने लिखा, अब उस मखतूते को एक दो मुंशियों ने कॉपी किया, अब वो चार मुंशियों ने कॉपी किया, कॉपी करने का तो गुम हो गया तो वो नुस्खा नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो प्रिंटिंग प्रेस आया वो उसने ये आसानी पैदा की कि जो आप लिखते हैं और उसको फिर कैलीग्राफी के जरिए, किताबत के जरिए उसको महफूज करते हैं, और महफूज करने के बाद एक किताब जो है वो 10,000 तादाद में छप जाती है, 20,000 तादाद में छप जाती है, फिर वो मुख्तलिफ इलाकों में फैलती है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में वो महफूज रह जाती है। अगर एक ही नुस्खा होगा, आपने कई बार तहरीक के लोग हैं वो मालूम है कि साहब फलां साहब का नुस्खा नहीं मिल रहा है, उसकी वजह यही होती थी। ये जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है और जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोर दे रही है वो ये कि एक तो स्पेस कम लेना है और चीज़ें आपके रिकॉर्ड में महफूज हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए भी लाजमी ये है कि आपको उसके बैकअप तैयार करने पड़ते हैं, एक नहीं कम से कम 10। इस दौर में जिस पर बहस हो रही है, क्या वाकई इस डिजिटलाइजेशन के ज़माने में उर्दू ज़रिए तालीम को कोई खतरा है? ये है सवाल जिस पर बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है उर्दू ज़रिए तालीम को डिजिटलाइजेशन के ताल्लुक से, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज हैं हमारी, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जितने भी उर्दू को फनून हैं, उनको तो उर्दू का जो सबसे बड़ा फायदा है, उर्दू की जो सबसे बड़ी खूबी है, उर्दू की शराफगिरी का जो सबसे बड़ा सबूत है, वो तो ये है कि वो तो झंझट और चक्कर में पड़ती ही नहीं है।
टेली ग्राम को टेलीग्राम रखती है, इंटरनेट को इंटरनेट रखती है, उसको ज़रूरत नहीं है कि उसको हर चीज़ को उर्दू करे। इसलिए हम जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हैं उर्दू ज़बान के लिए, तो किसी भी ज़बान, ज्योग्राफी का हो, बॉटनी का हो, ज़ूलॉजी का हो, उसको उसी तरह से अपना लेती है। तो जब डिजिटलाइजेशन का ज़माना हमारे पास आएगा, उर्दू को कोई खतरा नहीं है, उर्दू तो फौरन इसको लब्बैक कहेगी। ऐसी ज़बानों के लिए मसला हो सकता है जो रिजिड है इस बात पर कि अगर हम हिंदी हैं तो हिंदी में ही उसको कबूल करेंगे, अगर हम मराठी हैं तो मराठी में ही उसको कबूल करेंगे। उर्दू तो ऐसी खुली डली ज़बान है कि हर लफ्ज़ को सिर्फ उसकी जो शर्त है सो ये है कि हम उसी लफ्ज़ को अपनाते हैं जो ताकतवर होता है, जो मजबूत होता है, जो ज़माने के साथ चलता है। यही वजह है कि उर्दू अपनों की तमाम तर बेइतनाइयों और बेवफाइयों के बावजूद, दुश्मनों की बात नहीं कर रहा हूँ, दुश्मन तो जो काम है वो करते ही रहे, मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो उर्दू दोस्त बनते हैं जैसे मैं बनता हूँ। जो उर्दू दोस्त हैं, जो उर्दू के अपने हैं, जो उर्दू के जानने, मानने और ईमान लाने वाले हैं, उनके तमाम तर बेइतनाइयों के बावजूद उर्दू आज भी इसीलिए जिंदा है कि उसने अपने दामन में हर ज़बान के लफ्ज़ को अपनाने का एक इरादा रखा हुआ है, एक ख्वाहिश रखी हुई है, उसको पूरा करते हैं। इसलिए डिजिटलाइजेशन का ज़माना हो या कोई भी ज़माना हो, उर्दू ने हमेशा ज़माने का साथ दिया है और ज़माने का साथ देती रहेगी। ज़रा बराबर भी नहीं, एक शुमा भी नहीं, एक रत्ती बराबर भी नहीं, उर्दू के जो मीडियम से जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ज़रा बराबर भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मैं उर्दू से पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखनी है बस, कि आपको जो बनना है वो हल्दीराम बनना है। हल्दीराम का मतलब समझ रही हैं आप लोग? पैदा हुआ होगा, नाम रख दिया हल्दीराम, अच्छा नाम नहीं मिला, हल्दीराम रख दिया। फिर उसने अपने चने वने बनाए होंगे, लेकिन उस चने बनाने में, उस पकोड़े बनाने में उसने इतनी महारत हासिल कर ली है कि हल्दीराम ब्रांड बन गया है। आप हेथ्रो एयरपोर्ट पे जाइए, हल्दीराम। आप कनाडा एयरपोर्ट पे जाइए, हल्दीराम। आप दुबई एयरपोर्ट पे जाइए, हल्दीराम। कहीं पे जाइए, हल्दीराम। तो हम भी हल्दीराम हैं, लेकिन हम उर्दू में हल्दीराम अगर है तो ऐसा करके दिखाएंगे कि बगैर हमारे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। आप उर्दू पढ़िए, उर्दू लिखिए, उर्दू मीडियम से आइए, लेकिन इस तरह से आइए कि आपके बगैर न स्कूल का काम चले, न कॉलेज का काम चले, न हिंदुस्तान का काम चले, न आपके समाज का काम चले। आपको हर हाल में ढूंढ के लोग ढूंढे साधु साधु को बुलाओ। किसी ने ये बात कही है कि जूता टाको, तो जूता टाकने में भी ऐसी महारत हासिल कर लो कि शहर का आदमी ढूंढ के पहुंचे कि फलां चौक पर जूता टाकने वाला बैठा है, वहीं से जूता टाकना। कोई ज़बान, कोई सब्जेक्ट, कोई मजमून कमजोर और खराब नहीं होता है। ये माना जाता है कि उर्दू में रोजगार नहीं है, उर्दू में तरक्की नहीं है, उर्दू में यूं नहीं है, उर्दू में वो नहीं है। मैं कहाँ लाऊं? मैं आज जो कुछ हूँ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उर्दू की वजह से। तो आपको ये तय करना है कि मैं उर्दू ज़रिए तालीम से पढ़ रही हूँ या उर्दू मेरी ज़बान है, कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगी और दिखाऊंगा कि मैं नागुज़ीर हो जाऊंगा अपने समाज के लिए। बस इतनी सी मेहनत कीजिए तो आप देखेंगे कि हर ज़माने में हर जगह आपकी कदर होगी और आपको अंदाज़ा होगा कि किसी फिजिक्स वाले से, किसी केमिस्ट्री वाले से आप कम नहीं होंगे। इस तसव्वुर को ख़त्म